नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक में। और हम लगातार कोरोना की इस दस्तक के बाद से बात कर रहे हैं किस तरीके से आपको इस महामारी से लड़ना है, कैसे सजग रहना, और आपकी जो तमाम शंकाएं और होती हैं मन में, उसके समाधान के लिए हम तमाम विशेषज्ञों को भी अपने साथ लेकर आते हैं ताकि किसी भी प्रकार की इस तरीके से इस लड़ाई में हम कमजोर ना पड़े। और कल की तारीख बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कल से हिंदुस्तान में कोरोना का टीकाकरण की शुरुआत होने जा रही है और अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है। और लेकिन फिर भी इस लड़ाई को हमको लगातार लड़ते रहना। तो अगले आधे घंटे के इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आरेंद्र, मेरे साथ मौजूद है मेरी वरिष्ठ सहयोगी सकल। Dhanyawad Arendra, thank you very much viewers for joining us on Doctor Speak. Remember, in the next half an hour we're going to have a telephone lines open. We're going to flash those telephone numbers right on your screen. Any queries related to COVID-19 precautions and most importantly SOPs for vaccination, we'll be having our special panel of doctors joining us right on this very show, and we'll be joined by Dr. Aparna Agarwal, Director, Professor, Department of Medicine from Lady Hardinge Medical College in National Capital, and also Dr. Prashun Chatterjee, Additional Professor from Department of Geriatric Medicines from AIIMS, is also going to be with us on Dr. Speak. And any questions that you have pertaining to vaccine inoculation, COVID precautions, etc., please call us. And in fact, you can also tweet your questions, and through our all social media platforms like Facebook, etc., you can always flash your questions. And I think we should go across to our doctors and take opening questions. Can we have the doctors on the panel if they're joining us live? Yes, they are there. Dr. Aparna, and thank you very much, Dr. Prashun, for joining us on the show. Dr. Aparna, coming to you. For the entire medical fraternity, ma'am, first of all, congratulations. Tomorrow is the day. Okay, Dr. Prashun, this one is for you, and ma'am is also just joining us. The whole world is looking at India tomorrow. First of all, congratulations to the entire medical fraternity. It's a very, very important day. World's largest inoculation drive or vaccine rollout exercise is going to be carried out here in India. Your thoughts on it, and most importantly, just for our viewers to understand all that we need to know about the first phase, especially the beneficiaries that will be accorded prominence or priority tomorrow in the first phase. Dr. Prashun. Yeah, definitely it is a great news after the panic situation of almost a year or so, that probably vaccine is going to give us a lot of relief. Both as far its efficacy as well as psychologically will be much more relieved after this. Of course, healthcare workers are the priority, as government has repeatedly mentioned. So as a healthcare worker, I am also part of this, and my team will get vaccinated from tomorrow. And across the country, whoever our colleague, they will receive this vaccine, as government has well organized this. Regarding first dose, definitely to not only healthcare worker, other frontline worker also will receive it. But one point I'll definitely mention that receiving the first dose does not help us to, does not relieve us from the various COVID behavior like wearing mask, using sanitation, and maintaining the distance. So you have to be very, very careful that don't believe that once one shot of vaccine is going to like almost make you immune from the virus. It can only reduce the severity, and again we have to have another booster dose also. Right, sir. So wait for that, but continue your COVID behavior. That is the only request to all of the viewers. Yes. बिल्कुल, ये अपने आप में लगातार बहुत जरूरी है कि भले ही वैक्सीनेशन की कल से शुरुआत होने जा रही है, लेकिन अभी भी इस लड़ाई को हमको कमजोर नहीं होने देना है। डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। और अब लगातार दर्शक भी हमसे सवाल हमको भेजने लगे। एक दर्शक हैं सूरज चौहान, जो कि फेसबुक लाइव पेज पे सवाल भेज रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन कोरोना के न्यू स्ट्रेन पर कितनी इफेक्टिव है, और क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है? न्यू स्ट्रेन की जब वो बात कर रहे हैं तो हम ब्रिटेन और उसके अलावा जो अफ्रीकी नेशंस है वहां से जिस न्यू स्ट्रेन की बात आई है उसकी ओर शायद ये इशारा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम आप? अभी उसका मालूम नहीं है, लेकिन जनरली कंपनीज बोल रही हैं कि ये इफेक्टिव होना चाहिए अगेंस्ट दोनों लंदन वाला स्ट्रेन एंड साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन। बट इसके ऊपर स्टडीज के रिजल्ट्स कुछ टाइम बाद आएंगे। अभी उन्होंने देने शुरू किए हैं
in these strains also. The efficacy data or immunogenicity data will come after some time. Initial reports ये कह रही हैं कि probably the same vaccines will work for both the strains. ओके डॉक्टर चिट्टा जी, किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि हिंदुस्तान उन महज चुनिंदा देशों में से है जिसने न सिर्फ वैक्सीन बनाई है बल्कि महज 1 साल के अंदर वो इसकी शुरुआत भी, यानी टीकाकरण कल से शुरू होने जा रहा है। ये एक एज ए नेशन हमारे लिए कितना गर्व का मसला है, कितने गर्व की बात है कि हम ये कल से शुरुआत करने जा रहे हैं, वो भी देसी वैक्सीन के साथ में। जरूर आपने सही कहा, दिस इज अ डेफिनेटली मैटर ऑफ प्राइड, बट साइमल्टेनियसली हमें ये भी सोचना है कि ये पैंडेमिक से जूझने का ये दिस इज वन ऑफ द मेनी वेपन, सो डेफिनेटली शुरू हो जाए, एंड एज पर द प्रीवियस क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट होपफुली देयर विल नॉट बी एनी मेजर साइड इफेक्ट. So, and most important thing, what I told previously also, people has a psychological support also here, other than the immunogenicity, seroconversion जो भी हम consider कर रहे हैं कि immune system के ऊपर काम करेगा, vaccine antibody titer create करेगा. Other than that, psychologically also people, especially we the healthcare worker who are also very panicky, you know, still now people are dying, healthcare worker dying. So definitely this will give a boost to all the healthcare worker, and definitely congratulations to the government. Dr. Aparna, but this is very reassuring, the fact that we have a vaccine, not only vaccine, we have 2 made in India vaccines. But at the same time, as a doctor, you've been associated with this show, Doctors Speak, since the outset of pandemic. Ma'am, we've traveled very far, but vaccine doesn't really mean that one has to get complacence. How do you explain this? This is not a complete cover, but एक तरीके का जो सुरक्षा कवच है, कई लोग को लगता है कि now that the vaccine is there, so the job is done, we are safe. But that is actually not the case, isn't it? Yes, because the vaccines right now have been approved for emergency use during the pandemic. The long-term approval will be given, or regular approval will be given after long-term results are available. अभी हमको ये मालूम है कि it produces antibodies, और कितने % antibodies produce करती है initially, after how much time, but कितने time के लिए ये antibodies हमारी body में रहेंगी ये भी हम नहीं कह सकते हैं, because we don't have long term results. अभी ये बताया जा रहा है कि it reduces the infection rate जिनको वैक्सीन मिला है, and hospitalizations have reduced. लेकिन इन्फेक्शन कितने % लोगों में ये प्रिवेंट करेगा, ये फुल्ली प्रिवेंट करेगा, वो भी डेटा हमारे पास आना है. इनिशियल स्टडीज यही बोल रही हैं कि हॉस्पिटलाइजेशंस कम होंगी, लेकिन इन्फेक्शन प्रोबेबली अभी भी हो रही है. वो ट्रांसमिसिबिलिटी उसकी कितनी होगी वो भी अभी हमारे पास डेटा नहीं है पूरा. तो दीज आर थिंग्स विच वी विल नो इन लॉन्ग टर्म. Whether we need a booster dose if the immunity level comes down after some time, this again we will know in long term. इसीलिए हमको ये सारी सावधानियां बरतनी हैं और इसके साथ साथ वो भी करना है. Plus herd immunity के लिए 70% of the population has to develop antibodies. It is 60 to 70%. तो उसमें भी टाइम लगेगा. इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगने का ये मतलब नहीं कि आप अपनी सावधानियां Yes, Dr. Aparna, और could you please फिरने लगे. Yes, Dr. Aparna, could you please elaborate on this herd immunity? Yes. Hopefully, we will get the news that it works for long and prevents infections and reduces transmission. Okay, let me take this question, Narendra, to Dr. Prashud. What is really herd immunity, and when do we actually achieve 100% herd immunity, and if at all that happens, does it mean that now that we develop a perfect immune system? What is herd immunity? देखिए, जैसे कि मेरे पहले मैडम भी बोल रहे थे, हार्ड इम्यूनिटी इज बेसिकली जब मेरे अंदर वायरस आया या तो वैक्सीन दिया गया, उसके बाद मेरे अंदर में उस वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन गई. सो वंस आई हैव एंटीबॉडी, either the virus is entering to my body, that antibody will kill the virus, plus I will not infect others who are surrounding me. So basically hard immunity is like a cumulative, एक community को हम immune कर रहे हैं या तो virus infection allow नहीं कर रहे हैं.
इसको लेमैन तरीके से समझाया गया तो सो सपोज आई हैव बीन ऑलरेडी सेरो कन्वर्टेड, आई हैव द एंटीबॉडी. So anybody who is coming in contact to me, neither he can infect, even if he is infecting me, the virus will kill in my body, nor I will infect others. So gradually we are increasing the number of people who are gradually becoming immune to the virus. So ये जितना धीरे धीरे तो 60% to 70% इसलिए बोला जाता है, कहीं कहीं डेटा में 50% भी बोला जाता है. तो मतलब 1 to 1 आप सोचेंगे तो एवरी डे हाउ मेनी पर्सन आई एम कॉन्टेक्टिंग, मतलब मीटिंग एवरी डे, उस हिसाब से देखा जाए तो समझा जाएगा कि ग्रेजुअली वंस वी आर डेवलपिंग दैट 60% पीपल आर डेवलपिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस वायरस विद अ गुड अमाउंट ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी, तो तब हम बोल सकते हैं इट इज अ हार्ड इम्यूनिटी. तो वैक्सीन देने का भी एक पर्पस वही होता है कि ग्रेजुअली विल डेवलप हार्ड इम्यूनिटी, और वो भी शुरू से बोला जा रहा है कि प्रोबेबली विल नॉट बी एबल टू गिव 100% वैक्सीन टू 100% पीपल, बट वंस 60 कुछ पीपल इन्फेक्ट होके एंटीबॉडी डेवलप किए होंगे, कुछ पीपल वैक्सीन के द्वारा एंटीबॉडी डेवलप किए होंगे. बट अगेन एज मैडम राइटली मेंशन, वी डोंट नो हाउ लॉन्ग वी विल बी इम्यून, how long we'll carry the adequate amount of antibody which will be enough to save me from the infection or its related complication. बिल्कुल महत्वपूर्ण यही है कि इस चेन को ब्रेक करना है. उसके कई तरीके हैं जिनमें से वैक्सीनेशन, जिसकी कल से शुरुआत होने जा रही है. एक कॉलर है मलिका जो कि मुंबई से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है. मलिका, स्वागत है आपका. आप पूछे अपना सवाल, क्या आप जानना चाहती हैं आप? हेलो सर, हम लोकल रेसिडेंट है बॉम्बे 3 से, और हमें ये जानना है कि हमें कब लगेगा वैक्सीन, क्योंकि मैं है ना आउट ऑफ बॉम्बे जाने वाली हूँ, और हमें कैसे पता चले कि अब हमारा नंबर आया है, क्योंकि मैं अकेली हूँ घर में और मेरा कोई है नहीं. ठीक है, आपका सवाल आ गया है. अब अपर्णा अग्रवाल जी, किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को लगता है कि मेरा नंबर कब आएगा, क्योंकि हम जानते हैं शुरुआती 3 करोड़ और 30 करोड़ का जो एक आंकड़ा है वो मेडिकल प्रोफेशनल्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स का, उसके बाद ये आम लोगों के लिए ड्राइव शुरू होगी, लेकिन ये कब तक चलेगा, इसको लेकर आप क्या कह सकते हैं फिलहाल? अभी प्रोबेबली 1 से 1.5 साल तो लगेगा, 1.5 साल के करीब. लेकिन अभी 2 वैक्सीन हैं, जैसे और वैक्सीन को अप्रूवल होगी और अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो हो सकता है टाइम पीरियड थोड़ा सा कम भी होए. बट प्रेजेंटली ये प्रिजम्पशन है कि टिल नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली टाइम लगेगा जब तक सबको ये वैक्सीन दे पाएंगे. इसमें गवर्नमेंट ने राइटली ये डिसीजन लिया है कि जो लोग सबसे ज्यादा अफेक्ट होने का जिनमें चांसेस हैं उनको उस प्रायोरिटी पर देंगे. सो गवर्नमेंट हैज मेड इट्स प्रायोरिटी लिस्ट, जिसमें पहले हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, क्योंकि वो इन सब पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं कोविड वालों को, तो उनमें चांसेस के इन्फेक्शन ज्यादा है, इसलिए उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर मिलेगा. फ्रंट लाइन वर्कर्स उसके बाद में मिलेंगे. उसके बाद में जो एल्डरली हैं उनको मिलेगा. गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड ऑन द एज 50 से अबव. कई स्टेट्स में ऑलरेडी लिस्ट बन गई है, कईयों में बन रही है. उसके बाद 50 से नीचे जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं. कोमॉर्बिडिटीज मतलब जिन सब बीमारियों की वजह से उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा सिवियर होने के चांसेस हैं. उसके बाद अभी चिल्ड्रन में 18 साल के कम में हमारे पास ट्रायल डेटा नहीं है एफिकेसी का, इसलिए उनमें अभी नहीं लगेगा. प्रेग्नेंट विमेन में अभी वैक्सीन नहीं लगेगा. जैसे हमारे पास डेटा आएगा ट्रायल्स का, उनमें भी अगर वैक्सीन सेफ है प्लस एफिकेशियस है तो वो भी इस लिस्ट में ऐड हो जाएंगे. लेकिन ये गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज किया है. आप इसमें किस कैटेगरी में फिट होती हैं उस हिसाब से टाइम लगेगा. तो अनुमान ये है कि प्रोबेबली विद इन अ मंथ हेल्थ केयर वर्कर्स को लग जाएगा, एंड विद इन 3 months हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स प्लस सम एल्डरली को भी लग जाएगा. तो बाकी जैसे जैसे ये डेवलप होता है, इसमें और कोई कठिनाई नहीं आए, कितना स्मूथली ये फंक्शन करता है उस पर डिपेंड करेगा कि इसकी स्पीड क्या है. जी सकल, हम लोग को एक बात दर्शकों को ये भी बताने की जरूरत है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो अभी आम लोगों के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म सरकार की तरफ से अभी नहीं दिया गया है जहां पे आप खुद से रजिस्टर कर सकें. इस बात की संभावना है कि कल जब ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होगा तो उसके बाद शायद आम लोगों के लिए जो कोविन ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा उसकी शुरुआत होगी, लेकिन इसकी अभी घोषणा सरकार के द्वारा की जानी बाकी है. अगर आपको किन्हीं भी माध्यमों से कोई जानकारी दी जा रही है खुद को रजिस्टर करने के लिए, तो फिलहाल अभी तक वो गलत है, सरकार ने उसकी घोषणा नहीं की. बिल्कुल फेक न्यूज, डोंट
fall prey or victim to fake news pertaining to vaccine inoculation. But Dr. Prasoon, taking this question a little further, there is a sense of concern because everybody wants to be connected, and naturally so. Eventually, we are going to open this up for the population by and large, but you think that that is the government's plan, but that's going to take some time. But till then, tracing, tracking, the three-pronged strategy, social distancing, masking, and the COVID protocol is must. That is something we cannot afford to let our guards loose. Absolutely, absolutely. And that is, I think, by this time, almost 10 months we are practicing this. It should be your habit. Usually in medical science, we say that if you practice something religiously 6 weeks, it should be your second nature then. So now practicing physical distancing, wearing mask, and using hand sanitizer or soap, and in fact these are good practice also. It's not only related to COVID, it will help you from pollution, other infection also. And one more thing, if you are not exposing yourself, which is, I understand, is little difficult, but without exposing yourself also, we are maintaining our day-to-day life. So that is very, very important. All right, I think we have another caller, BK Sinha, calling us from Pune. Yes, BK Sinha ji. Yes, please go ahead, Mr. Sinha, with your question. मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा एज 83 ऐसा है जी। मैं और मेरी मिसेस, वो भी बुढ़ी है, हम दोनों पुणे में रहते हैं, अकेले रहते हैं जी, और हमारे साथ कोई यंग नहीं है। ओके, तो हम ये पूछना है कि हमको कहाँ पे कैसा करना पड़ेगा वैक्सीनेशन के लिए। ओके ओके, सिन्हा जी प्लीज स्टे विद अस। डॉक्टर अपर्णा, वैक्सीन का आपके पास मोबाइल आपके पास में होएगा, मोबाइल पर आपके इंटीमेशन आएगी कि आपको इस सेंटर में इस तारीख को जाना है वैक्सीनेशन के लिए। आपका नंबर अभी फर्स्ट 2 फेजेस जब खत्म हो जाएंगे, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद में आएगा, लेकिन आपको इंटीमेशन आएगी गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने बहुत तैयारी की है, काफी ड्राई रन्स किए हैं, प्रैक्टिस रन्स किए हैं, एंड सिस्टम्स आर इन प्लेस कि सबको इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी और आपके साइड इफेक्ट्स वगैरह मॉनिटर करने के लिए भी सिस्टम्स आर इन प्लेस। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पास इंटीमेशन आ जाएगी। बिल्कुल, और शायद सकल इस बात को भी हम जोड़ दें कि जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने अपने अपने यहाँ के जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जो एजेड लोग हैं उनका डेटाबेस तैयार किया हुआ है और अकॉर्डिंगली वो उसको अथॉरिटीज को दे रहे हैं और वो लोग तय करके आपको खुद प्रायोरिटी बेसिस पे, क्योंकि आपने बताया कि आपकी उम्र 83 साल है और आपकी वाइफ की उम्र भी लगभग इसके आसपास है, तो ऐसे में निश्चित तौर से जो 50 प्लस की कैटेगरी वाली स्थिति है उसमें आपका निश्चित रूप से नंबर आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपको वैक्सीन मिल भी जाएगी। इस बीच में एक कॉलर है हमारे साथ में फेसबुक लाइव पे, वो जानना चाहते हैं कि क्या वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद में क्वारंटीन होने की भी आवश्यकता पड़ेगी? डॉक्टर चटर्जी जी, क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 2 डोज, लेकिन इन 2 डोज के बीच का जो समय है उसमें क्या क्वारंटीन होने की जरूरत होगी या किस तरीके से बिताना है, उसको लेकर फिलहाल आप क्या कह सकते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि पहला डोज लेते ही तुरंत आपके शरीर में एडिक्वेट एंटीबॉडी आ गया, ये सही नहीं है। जितना भी स्टडी हुआ है, इट इज टेलिंग दैट इट टेक्स नियरिंग 14 days टू हैव एडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स। तो 14 दिन मतलब वही हम क्वारंटाइन 14 दिन का ही कर रहे थे, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट दैट इम्यून, तो आपको क्वारंटाइन करना चाहिए इफ यू आर एक्सपोज्ड विद एनीबॉडी। ऑलराइट, देयर आर लॉट ऑफ myths or perhaps misinformation about the so-called severe side effects. Could you please explain, Dr. Prasoon, what are these side effects, and one doesn't need to necessarily get panicked about these side effects? देखिए, side effect as such it can be like, point is जो रिपोर्ट की बात हम कर रहे हैं, कुछ डेथ भी हुआ है जिसको लेकर लोगों में चिंता है। अभी तक हमें ये पता नहीं है कि वो कॉजल फैक्टर क्या था, वाज इट द वैक्सीन ओनली और समथिंग एल्स, क्योंकि एक आदमी के साथ बहुत सारे बीमारी रह सकते हैं। किसी को कार्डियोवास्कुलर डेथ हुआ, वेदर ही वाज सफरिंग फ्रॉम एनी कार्डियोवास्कुलर डिजीज और नॉट, वी डोंट नो। So basically एक वायरस which was initially affecting only lungs
बट इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। उसको मिमिक करके, इनएक्टिवेट करके या डिमॉर्फ करके जो वैक्सीन बनाया जा रहा है, इट इज अनलाइकली टू हैव एनी मेजर साइड इफेक्ट। ऑफ कोर्स स्मॉल हेडेक, थोड़ा बहुत हेडेक होना, हाथ में जहां पे लगाया गया वहां पे सूजन, और कोई भी वैक्सीन से हो सकता है, हल्का बुखार आना 1-2 दिन के लिए, ये सब साइड इफेक्ट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर एनी वैक्सीन इन फैक्ट। बट ऑफ कोर्स अगर आपको डिसोरिएंटेशन हो रहा है, मेनिंजियल इरिटेशन जिसको हम बोलते हैं, उल्टा सीधा बात कर रहा है, बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है, बहुत ज्यादा उल्टी हो रहा है या लूज मोशन हो रहा है, देन यू मस्ट विजिट योर डॉक्टर एंड डेफिनेटली दीज आर द थिंग्स व्हिच विल बी इन्फॉर्म्ड ऑन द स्पॉट ऑल्सो। जिनको भी वैक्सीन दिया जाएगा उनको ये इन्फॉर्म किया जाएगा कि इन केस ऑफ सीवियर साइड इफेक्ट यू हैव टू कम। बट अगेन इसके लिए डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तक जितना भी रिपोर्ट आया है वैक्सीन ड्यूरिंग द ट्रायल फेज रिलेटेड टू साइड इफेक्ट आइदर कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये सब अभी तक हमारे पास ये प्रूफ नहीं है कि ये वैक्सीन देने के लिए हुआ गया था। प्लस यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इट वाज अ RCT, दैट मींस देयर इज 50% चांस जो बंदे को साइड इफेक्ट हुआ है उनको वैक्सीन मिला था कि नॉर्मल सलाइन मिला था, वी डोंट नो दैट आल्सो। बिल्कुल, सो नथिंग टू वरी, अभी तक का जो रिपोर्ट है उसमें ऐसा कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल। और सरकार की जो कोविन ऐप है और जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से भी वैक्सीनेशन के बाद सर्विलांस की पूरी व्यवस्था की जा रही है, इस भरोसे को भी हम सबको मानना चाहिए। इस बीच में चंडीगढ़ से एक दर्शक हैं सतवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सतवीर जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। मैं ये चीज जानना चाह रहा हूँ कि सर जो अभी ट्रायल हुए हैं उनमें कितने साइड इफेक्ट्स नोट किए हैं और कहाँ तक की सीवियरिटी के नोट हुए हैं, और दूसरा इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कितने दिन बाद दोबारा लगाना पड़ेगा? डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे एफिकेसी को लेकर और क्या साइड इफेक्ट्स को लेकर जो मन में शंका है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेजर साइड इफेक्ट्स जो 2 वैक्सीन अभी हमारे यहाँ जिनको इमरजेंसी यूज अप्रूवल दी है भारत में, उनमें मेजर साइड इफेक्ट्स कोई रिपोर्टेड नहीं है। माइनर साइड इफेक्ट्स जरूर हो सकते हैं और वैक्सीन में होते हैं, विच इज नॉर्मल फॉर ऑल वैक्सीन। आप टेटनस टॉक्सॉइड का भी इंजेक्शन लेते हैं, उसमें स्वेलिंग होती है, फीवर आ सकता है, लेकिन हम सबको मालूम है और हम लोग लेते हैं। बहुत सारी दवाइयां भी जो हम रूटीन में खाते हैं उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, मेजर साइड इफेक्ट्स कोई रिपोर्टेड नहीं है। और जहां तक एफिकेसी की बात है, जैसे बताया था, एफिकेसी एक इम्यूनोजेनिसिटी होती है जिसमें हम एंटीबॉडी लेवल्स मेजर करते हैं, वो इसमें एडिक्वेट हो रही हैं इन मोर देन 90% ऑफ पेशेंट। कितने टाइम तक रहेंगी उसका भी हमारे पास जवाब नहीं है। कब वेन होने लगेगी और बूस्टर शॉट एनफ होएगा कि नहीं होएगा और कब लगवाना होगा, अभी उसका जवाब नहीं दे सकते हम लोग। सेकेंड चीज कि ये वैक्सीन लेने के बाद में हम में वायरस इन्वेड कर सकता है हमारी बॉडी की नहीं, और अगर इन्वेड करेगा तो हमें कौन से माइल्ड इन्फेक्शन ही होएगा, मॉडरेट तक जाएगा कि सीवियर जाएगा, वो अभी हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं। इनिशियल रिपोर्ट्स ये हैं कि सीवियर इन्फेक्शंस नहीं हो रहे हैं जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें, और हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन कितने पीरियड के लिए रहेगा उसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेटा पोस्ट वैक्सीनेशन अभी अवेलेबल नहीं है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे रिपोर्ट्स आएंगी उससे हमको ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों को या कितने टाइम के बाद हमको बूस्टर की जरूरत है या ये है। और एडवर्स ड्रग इफेक्ट सब मॉनिटर हो रहे हैं, माइल्ड, सिवियर, लाइफ थ्रेटनिंग, सब के सब मॉनिटर होंगे। तो किसी को हो जाता है तो वो भी पता चलेगा। All right, Dr. President, we have a Facebook question via Facebook. How would I come to know that the vaccine is now working on me? As in the efficacy, the time window after being inoculated. What is the time window that it starts working on your body? टाइम विंडो तो मैंने कहा था एज पर द अभी तक का जो रिजल्ट है उसमें 14 डेज में इम्यूनिटी डेवलप होता है, बट हमें कैसे पता चलेगा? इट इज नॉट समथिंग लाइक फिजिकली आई विल अंडरस्टैंड। इसलिए हम कह रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोविड बिहेवियर कंटिन्यू करते रहना है। इट्स नॉट दैट कि हमने ले लिया उसके बाद हमारे पास एनर्जी आ गया और इम्यूनोजेनिसिटी हमें पता चल गया, बट ऑफ कोर्स बाद में इसका टाइटर देखा जा सकता है, बट देयर इज नो मैकेनिज्म टू डू सो अभी तक कि सबका सेरो कन्वर्शन हो रहा है कि नहीं, एंटीबॉडी टाइटर कितना डेवलप हुआ, वो देखने का भी यूजुअली वैक्सीन के बाद नहीं होता है। एंड आई विल कंटिन्यू विद द प्रीवियस मैडम का जो बात था
कि वैक्सीन देने का मतलब, इवन इफ यू सी निमोनिया वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, वैक्सीन हमारा सिवियरिटी को कम करेगा बीमारी को. इट डज नॉट मेक यू 100% इम्यून. कि वायरस तो आपके शरीर में अंदर आ ही सकता है, लेकिन अंदर आने के बाद भी अगर ये माइल्ड सिम्टम या एसिम्टोमेटिक रह जाए तो देयर इज नो प्रॉब्लम. सो इट विल प्रिवेंट हॉस्पिटलाइजेशन एंड सीवियर इन्फेक्शन. दैट इज द मेन थिंग. जी डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल जी, जैसे कि कोई प्रायोरिटी लिस्ट में जो लोग आ जाते हैं, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशनल्स या जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, अगर उनका वैक्सीनेशन होता है बट उनके फैमिली मेंबर्स अगर उस प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, तो फैमिली मेंबर्स को और किस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है? क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की, एक व्यक्ति का वैक्सीनेशन हुआ है, एक डोज लगी है, उसके बाद में बाकी फैमिली मेंबर्स को क्या व्यवहार करना है, इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे, स्पष्टता देना चाहेंगे? कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की बात नहीं, जो नॉर्मली ले रहे हैं वही प्रिकॉशन लेनी है. जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके फैमिली मेंबर्स को ज्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि हम लोग को एक्सपोजर के चांसेस ज्यादा होते हैं. हम लोग को भी ज्यादा सतर्क रहना है कि जब घर वापस जाते हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दीज प्रिकॉशंस. तो वही सेम प्रिकॉशंस मेंटेन करनी है, उसमें और कोई एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है. All right, Dr. President, final word from you. Very quick 5 do's and don'ts. Do's the COVID behavior, and when once you get opportunity, you take the virus, take the vaccine, because something is better than nothing. It will definitely help you in improving your immunogenicity. But please continue COVID behavior. Yeah. That is very, very important. And vaccine will not make you 100% immune. So be careful for that. But don't be panicked. Take the vaccine. Okay, ma'am, your 5 quick points. I think we have to stop relying on all WhatsApp and this fake news. So we should go by what the government is saying. Emergency use approval has been given for these vaccines after taking into account everything by a body of regulators. So I think we should rely on that and not panic and think of all the side effects of the fake news going on WhatsApp and this. And of course, we have to maintain COVID appropriate behavior. That is a must. And take your vaccine as and when your turn comes. बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि फेक न्यूज़ से बचे रहने के लिए आप दूरदर्शन न्यूज़ से जुड़े रहिए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ऑथेंटिक और सही बात ही बताते हैं, किसी भ्रम की स्थिति को पैदा नहीं होने देती है. इसीलिए लगातार हम डॉक्टर स्पीक के माध्यम से डॉक्टर्स और जनता के बीच में संवाद खड़ा करते हैं. फिलहाल आज इस कार्यक्रम में इतना ही. आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए. तो अपने आप में बेहद ज़रूरी है, भले ही कल से देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही हो, लेकिन हमको हमारा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको बनाए रखना है. Absolutely. Well, tomorrow, first phase kick-starts. At least 3,000 medical centers across the country, 100 beneficiaries at least each from one center. And this exercise, remember, is the world's largest, conducted by India, and it is only going to get bigger and better from here on. Thank you very much for tuning in on Dr. Speak. We'll be back again soon on Monday. Thanks. Namaskar.